مسیح یسوع کے خوبصورت نام میں سب کو سلام۔ آئیں اپنے ایمان کا ہم اقرار کریں گے رسولوں کے عقیدے کے ساتھ۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق پاک پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا اور عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا اور خدا قادر مطلق کی دہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ آئے ہم آج کی تلاوت کلام پاک میں سے دیکھیں گے مقدس مرکز کی مارفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 16واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے بات کے آخر تک ہم پڑھیں گے۔ مقدس مرکز کی مارفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 16واں باب 14ویں آیت سے بات کے آخر تک، بک آف مارکس چیپٹر نمبر 16 ورس 14 ٹو اینڈ آف دا چیپٹر۔ تو بھائی شفاقت سے میری درخواست ہے کہ اس حوالے کو تلاوت کرنے میں ہماری رہنمائی کریں گے۔ سو خداوند کے کلام میں یہ مرقوم ہے، پھر وہ ان 11 کو بھی جب کھانا کھانے بیٹھے تھے دکھائی دیا، اور اس نے ان کی بے اعتقادی اور سخت دلی پر ان کو ملامت کی، کیونکہ جنہوں نے اس کے جی اٹھنے کے بعد اسے دیکھا تھا انہوں نے ان کا یقین نہ کیا تھا۔ اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا۔ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کے داہنی طرف بیٹھ گیا۔ پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی، اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو ان معجزوں کے وسیلہ سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا۔ خداوند کے کلام کے پڑھیں اور سنے در پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ شکریہ، تشریف رکھیں۔ پچھلے سنڈے یاد ہے کسی کو کیا کلام ہوا تھا؟ کیا ٹاپک تھا کلام کا؟ یاد ہے کسی؟ خدا کے بندے بڑی ترتیب کے ساتھ کہاں سے شروع کیا تھا یہ بھی بتا۔ اس نے اپنے آپ سے شروع کیا تھا، اپنے بارے میں کہ میں کیسے توبہ تک پہنچا، خدا کے نزدیک آیا، کیسے میں نے یسوع مسیح کو پہنا۔ یہاں ہم مقدس مرکز کی انجیل میں دیکھتے ہیں، انجیل یسوع مسیح کی ہے، لیکن اس شخص کے وسیلے یہ باتیں قلم بند ہوئیں، اس لیے اس کے نام منسوب ہیں۔ اور مرکز رسول نہیں تھا، ایک خادم تھا، خدمت کرنے والا شخص تھا، اور کئی جگہوں پہ اس کا نام ملتا ہے۔
मरकज़ यूहन्ना भी इसको कहते हैं और रसूलों के साथ खिदमत में ये रहा है और इसके वसीले ये किताब जो लिखी गई आज हमारे पास मौजूद है और वो बताता है यीशु मसीह की आखिरी दिनों की छोटी सी कहानी जो हमने पढ़ी है कि वाक़या यीशु जीतने के बाद उनके पास आता और उनसे गुफ्तगू करता है और मैं कहूँगा उनको डांटता है। गुस्से हो रहा है यीशु शागिर्दों को। क्या पढ़ा हमने? लिखा फिर उन 11 को भी जब खाना खाने बैठे दिखाई दिया और उसने उनकी बेइज्जत कर दी और सख्त दिली पर उनको क्या की? मलामत की। मसीही ईमान एक अनोखा ईमान है। मसीही मजहब एक अजीब मजहब है और मसीहत एक अजीब तरह का ईमान रखने वाली कलीसिया गिरोह और जमात है जो आम दुनिया के मज़हब से बिल्कुल मुख्तलिफ है और बाइबल मुकद्दस की कुदरत आम लोगों आम मज़हब की किताबों से मुख्तलिफ है। कैसे? और इसको कबूल करना बड़ा अनोखा लगता है, बड़ा अजीब सा। और लाखों हजारों लोगों ने इसको समझने की खातिर, इसको साबित करने की खातिर और इसके बारे में, इस ईमान की पहचान करने के बारे में बड़ी तहकीकात की है और सबसे ज्यादा तहकीकात जो दुनिया में हुई है बाइबल मुकद्दस पर हुई है, दूसरी किताबों पर नहीं। ना ग्रंथ पर इतनी तहकीकात हुई है, ना कुरान मजीद पर इतनी तहकीकात हुई है कि उसके बारे में सोचा जाए, देखा जाए, परखा जाए, क्योंकि उसके बारे में कोई ऐसी दलील जस्ट उन्होंने समझा कि ये इल्हाम हुआ है और उन्होंने कबूल कर लिया है। लेकिन बाइबल मुकद्दस एक ऐसी किताब है, यीशु मसीह के अल्फाज ऐसे कीमती और कुदरत वाले और अजीब अल्फाज है। इंसान इस पर तहकीकात करता रहे और समझने की कोशिश करता है जो किसी की समझ में आज तक बिल्कुल नहीं है। जिस ईमान से इसको कबूल करना पड़ता है और बड़ी बड़ी किताबें इसको साबित करने के लिए, इसको समझने के लिए लिखी गई और बड़े बड़े उलमा इस किताब को समझने और परखने और साबित करने के लिए सालों तक रिसर्च करते रहे, तहकीकात करते रहे। लेकिन वही शख्स कामयाब है जो ईमान से इसको कबूल करता है और अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को आने के लिए जगह देता है, वही शख्स कामयाब है। वरना यीशु मसीह की बातें और बाइबल मुकद्दस को पूरे तौर पर समझना इंसान के बस की बात नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ मसीही ईमान एक अजीब और अनोखा ईमान है और खुदा ने अजीब तरह से अपने लोगों पर अपनी मोहब्बत को जाहिर किया। इसलिए हम देखते हैं शागिर्द यीशु मसीह के साथ और उसके मुआजिज़ात देखते रहे हैं और उसके साथ बड़े वादे उन्होंने किए। लेकिन जब यीशु यहाँ आया है इनके दरमियान और उनको मलामत करता है क्योंकि उनका ईमान उनकी जिंदगी में डामाडोल हो चुका था और यीशु मसीह को पहचान नहीं रहे और उनकी सख्त दिली और उनकी बेइज्जती पर उनको यीशु मसीह मलामत करता है और फिर उनको यकीन दिलाता है। यकीन दिलाने के बाद एक हुक्म यीशु मसीह देते हैं, जाओ सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो क्या पाएगा? निजात पाएगा। जो ईमान ना लाए वो क्या ठहराया जाएगा? मुजरिम। और इस ईमान की तहकीक करते करते दुनिया ने बड़ी किताबें लिख छोड़ी हैं, लेकिन पूरे तौर पर इस ईमान की समझ नहीं आई। समझ उस शख्स को आएगी जो इस ईमान को कबूल कर लेगा, इस कलाम को कबूल करेगा, उस शख्स को समझ आ सकती है, दूसरे शख्स को कभी समझ नहीं आएगी। और लिखा ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोर्चे होंगे। कैसी अनोखी बात है, वो मेरे नाम से विद्रोहों को
कोई उन्होंने कोर्स नहीं किया होगा, कोई उनके पास फार्मूला नहीं होगा, कोई उन्होंने टाइम नहीं गुजारा होगा किसी के साथ, उन्होंने रुपया पैसा नहीं खर्च किया होगा ताकि बदरूहों को निकालें, अबलीस पर गाली पा सकें। उन्होंने कोई चिल्ला नहीं काटा ताकि बड़े देवता को और बड़े देवों को, बड़े जिन को अपने कंट्रोल में करें और उससे काम ले। और उन्होंने कोई बदरूहों को अपने कंट्रोल में नहीं किया, बल्कि ईमान से यीशु मसीह के इख्तियार को जब अपनी जिंदगी में लेते हैं वो अजीब मौजज़ा कर सकते हैं। और फिर लिखा है वो नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। ज़बानों की समझ नहीं आती और इस पर बड़ी आज तक तहकीकात होती रही है, लोग करते रहे हैं। और इन ज़बानों को भी ईमान से जब तक कबूल नहीं करेंगे, रिसीव नहीं करेंगे, इन ज़बानों की समझ नहीं आएगी, इस स्टेटमेंट, इस बयान की समझ कभी नहीं आएगी जब तक इसको ईमान से कबूल नहीं करेंगे। इसलिए मसीही ईमान एक अजीब ईमान है जिसको हमने जस्ट अपनी जिंदगी में कबूल करना होता है, ज़हनी तौर पर हमने कबूल करना होता है। और मसीही ईमान ऐसा ईमान है आज तक कोई शख्स साबित नहीं कर सका। खुदा, एक खुदा में तीन है और तीन में एक है। तीन में एक खुदा है और एक में कितने हैं? अकल और समझ से बालातर बात है, ये समझ में ना आने वाली बात है। जस्ट एक ईमानदार शख्स या एक शख्स ईमान से कबूल करेगा और उसकी फिर समझ में कुछ ना कुछ आ जाएगा। जुबानें बोलने से भी यही है, अगर कोई शख्स समझना शुरू कर दे तब फिर उसको समझ नहीं आएगी, लेकिन जब ईमान से वो शख्स कबूल कर लेगा कि खुदा की कुदरत ऐसे ही ज़ाहिर होगी तो उसकी समझ में कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाएगा। और बड़े बासु मुबासा इस बात होते रहे, स्टेटमेंट पर, इस बात पर बड़ी मुखालफत होती रही है, आज भी होती है। कोई मानता है, कोई नहीं मानता, कोई कबूल करता है, कोई नहीं करता। लेकिन ऐसा शख्स जो ईमान से कबूल कर लेगा उसको खुदा का रूह इसकी समझ देना शुरू कर देगा। ग्रंथ खत में लिखा है जो बेगाना ज़बानों में बातें करता है वो किससे करता है? खुदा से। हालांकि वो खुद नहीं समझता वो क्या कहता है, लेकिन खुदा उसकी समझता है। इसका मतलब ये ना समझ में आने वाली बात है, लेकिन पाक रूह समझाता है। यूहन्ना की इंजील में लिखा है, जब मैं बाप से दरखास्त करूंगा कि तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा और वो तुमको तय की बातें बताएगा और वो बातें जो तुम्हें याद नहीं तुम्हें याद दिलाएगा, और वो बातें जो तुम्हें याद नहीं या वो तुम भूल चुके हैं वो तुम्हारे सामने लाकर तुम्हें याद दिला देगा। और ये पाक रूह करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर लिखा अगर हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो फिर वो हलाक भी नहीं होंगे। उन्होंने पहले से कोई चीज़ नहीं खाई होगी ताकि जहर जो है वो बेअसर हो जाए। फिर लिखा है बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? कि दवाई दे देंगे। कोई फार्मूला उनके पास, कोई उन्होंने कोर्स किया है कि उन्होंने सीखा है कैसे हम इसको करें। जब ईमान से खुदा की कुदरत जब उनकी जिंदगी में काम करेगी, जब उन्होंने ईमान से यीशु कबूल किया तो यीशु मसीह का इख्तियार उनकी जिंदगी में ऑपरेट करेगा, फंक्शन करेगा, काम करेगा। और जिस शख्स पर हाथ रखेंगे जब खुदा की कुदरत फंक्शन करेगी वो शख्स शिफा पा जाएगा, किसी और चीज के साथ नहीं, जस्ट उस अजीब ईमान के साथ जो समझ में इतनी जल्दी नहीं आता। और फिर लिखा गया खुदा ने सुन से कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया, खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। फिर उन्होंने निकल कर हर जगह मुनादी की जो खुदावंद यीशु से हुक्म दिया और खुदावंद उनके साथ काम करता रहा। किसने काम किया उनके साथ?
यीशु मसीह ने। इसका मतलब जब ईमान से यीशु मसीह को हम कबूल करेंगे, वो हमारे साथ काम उसने करना है। वसीला एक ईमानदार शख्स होगा, एक इंसान होगा, काम यीशु मसीह ने करना है। और कलाम को मौजूदों के वसीले जो साथ साथ होते थे साबित करता रहा, इंसान ने नहीं करना और किसी सीखे हुए शख्स ने नहीं करना, खुदा उसके साथ है। मत्ती की इंजील में लिखा है, यीशु मसीह का हुक्म है, जाओ सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और उनको उसके नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन बातों पर अमल करें जो जिनकी मैंने तुमको तालीम दी है। और देखो दुनिया की आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए दाऊद बादशाह बड़ी दलेरी के साथ कहता है, मैं मेरा गुजर का मौत की बाती में से मैं किसी बला से नहीं डरूंगा कि खुदा मेरे साथ है। इसलिए मसीही ईमान अजीब तौर पर जिंदगी में काम करता है और यीशु मसीह अजीब और अनोखे तौर पर काम करता है। कभी कभी हम कहते हैं मैं ठीक नहीं हाले वाला, मैं ठीक होकर फिर बपतिस्मा मांगा। यीशु मसीह के पास है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो क्या पाएगा? नजात या रिहाई खरीदनी पड़ेगी, फार्मूला नहीं है, कोई कोर्स नहीं करना पड़ेगा। ईमान लाने से अजीब तौर पर शख्स की जिंदगी में तब्दीली आए। जैसे बम ब्लास्ट होता है और अजीब धमाका होता है, ऐसे ही ईमान लाने से उस शख्स की जिंदगी कलाम के मुताबिक एक तब्दील हो जाएगी। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। कईयान के बपतिस्मा लाना लगा हाले मैं ठीक नहीं है, मैं हाले ठीक नहीं है क्योंकि मैं इस काबिल नहीं है। काबिल हम नहीं बन सकते, हमारे पास भी फार्मूला नहीं, या अभी हमने कोई कोर्स नहीं करना ताकि हम ठीक हो जाएं, बल्कि ईमान लाने से अजीब तौर पर खुदा की कुदरत उस शख्स की जिंदगी में काम करेगी और उसकी सोच, उसका दिल, उसकी राहें, उसके सारे मंसूबे यीशु के नाम से और उसके कलाम से यकसर तब्दील हो जाएंगे और ये मुझसाना तौर पर होगा। हमें रास्तबाजी का कोर्स करने की जरूरत नहीं है, ना हम कर सकते हैं। पिछले संडे मैंने बताया था कि जस्टिफिकेशन तस्दीक होती है जब कोई शख्स यीशु मसीह को कबूल करता है, तो यीशु मसीह की रास्तबाजी उस शख्स के अंदर मुंतकिल होती है, उसकी अपनी रास्तबाजी नहीं है। किसकी रास्तबाजी मुंतकिल होती है? यीशु मसीह। उसको ईमान कबूल करने से यीशु मसीह की रास्तबाजी उस शख्स की जिंदगी में मुंतकिल होती है और वो रास्तबाज कहता है, बगैर कुछ किए, बगैर कुछ दिए, बगैर फार्मूले के जस्ट ईमान लाने से वो शख्स रास्तबाज बन जाता है, क्योंकि यीशु मसीह की रास्तबाजी उस शख्स की जिंदगी में मुंतकिल होते हैं। फिर हम को ठीक होने की जरूरत, पहले अपने को ठीक कर ले, फिर हम बपतिस्मा लेंगे। यीशु मसीह की रास्तबाजी हमारे अंदर प्रवस्त होती है क्योंकि वो रास्तबाज है, और फिर वो रास्तबाजी हमें आगे लेकर चलती है। उसी की रास्तबाजी के वसीले हम तमीर होते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, हम तरक्की करते जाते हैं, खुदावन के बेटे और बेटियां ठहरते हैं। इसे यूहन्ना के इंजील में लिखा है, जो जिन्होंने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के पसंद बनने का हक बख्शे, कुछ करने से नहीं, जस्ट ईमान लाने से। इसलिए बपतिस्मा इसकी भी बड़ी मुकाम। कोई कहता है बच्चे का बपतिस्मा है, कोई कहता है बड़े का बपतिस्मा है, कोई कहता है डुबकी वाला बपतिस्मा है, कोई कहता है छींटों वाला बपतिस्मा है। लेकिन जस्ट ईमान लाने से यीशु मसीह ने क्या कहा है, जो ईमान लाए बपतिस्मा ले वो क्या पाएगा? नजात पाएगा।
कैसे? ईमान लाने से मुजसाना तौर पर उसकी जिंदगी खुदावन के कलाम से तब्दील हो जाए और वो शख्स नया बन जाए, उसकी सोच खुदा के कलाम के वसीले तब्दील हो जाए और वो शख्स चेंज हो और उसके वसीले खुदा अजीब तौर पर काम करने के लिए तैयार। हम देखते हैं जब यीशु मसीह ने कलाम किया, लेकिन इसके बाद वो मुनादी के लिए निकले और उनके वसीले अजीब मुआजिज़ात होना शुरू हो गए। जब कोई शख्स कबूल करता है यीशु मसीह को ईमान से, उसकी जिंदगी में खुदा का इख्तियार, यीशु मसीह का इख्तियार, यीशु मसीह की कुदरत मुंतकिल होती है। आगे वो यूज करे या ना करे ये उसकी मर्जी, लेकिन एक बार खुदा मुजसाना तौर पर उसकी जिंदगी में एक बड़ा चेंज लेके आता है। उस शख्स की सोच, उसका दिल और उसके इरादे और उसकी जिंदगी एक बार यीशु तब्दील हो जाती है। आगे वो कैसे कायम रहता है, नहीं रहता, ये शख्स की अगली जिंदगी है कैसे वो गुजारता है। लेकिन खुदा का कलाम यीशु मसीह के अल्फाज हैं, जो ईमान लाए वो क्या करे? बपतिस्मा ले, वो क्या पाएगा? निजात पाएगा। तो अगर हम सोचते रहेंगे मैं हाले ठीक होना है, फिर तो हम खुद ठीक नहीं हो सकते। खुदा का कलाम हमें दुरुस्त करता है। यीशु मसीह की रास्तबाजी हमारी जिंदगी में पेवस्त होती है जब यीशु मसीह के साथ दफन होते हैं, उसके साथ यीशु मसीह के साथ मसलूब होते हैं, उसके साथ दफन होते हैं, उसके साथ जी उठते हैं, तो हम नई जिंदगी पाते हैं। आगे नई जिंदगी में कायम रहना भी कलाम के मुताबिक है, लेकिन पहला जो स्टेप है एक शख्स का, एक इंसान का, वो यीशु मसीह पर ईमान। और बाकी मज़ाहब में इस कदर ईमान की मुजसाना कुदरत हम नहीं देखते, लेकिन मसीही ईमान ऐसी कुदरत रखता है जो नजर नहीं आता। ईमान कहीं भी नजर नहीं आता, लेकिन ईमान को हमने कबूल करना है अपने दिल में, अपने ज़हन में रखेंगे जब ऑटोमेटिकली ये कलाम हमारी जिंदगी में असर पैदा करेगा। इसलिए जितने